Okay. So we are recording this session. Your issue was describe image and retail lecture. Yeah, First, yeah. first of all, tell me what template are you using? Actually, and the template I used is from EnglishWise Academy. Uh-huh. I thoroughly used everything like essay template, summarize spoken text, and summarize written text. I everything used from that academy, Mhm. and in that regard, in the template that I used from that institution uh, for describe image and retail lecture. Mhm. I feel like it's outdated. They're not. It is the software is not accepting that thing, and a lot of people, though they are getting, I got 8 each like that one in that regard, but people who are getting 8 each, but they are getting below 79 in speaking just because of retail lecture and summarize spoken text because software is not now accepting that old template, I guess. Okay. So hearing the whole story, I'm telling you, it's not the issue with the templates. Each and every Okay, template is working. You cannot say this is okay, outdated. This is my score. I'm sharing my screen. The okay, main okay, okay. problem is that how you use the template. Like what I have seen so far, people are crazy about template. We need template with our updated template, but they exactly don't know how to use it. Template itself means something that is just an outline or just a framework to follow. It's not a Okay. actual thing. Now, the issue that the people are doing is that template Hmm. is not the thing, not the answer that is stored in the system of Pearson. जो जवाब है ना वो आपका टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। फिर जवाब जो है टेम्पलेट हर किसी का डिफरेंट है। पियर्सन ने टेम्पलेट के आंसर्स नहीं सेव किए हुए, पियर्सन ने वो सेव किया हुआ है जो जिस सवाल पे आप खड़े हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल डिस्क्राइब इमेज है, डिस्क्राइब इमेज में जो लिखा ठीक है है। वो आंसर है। डोंट हम्म। फॉलो एनी टेम्पलेट रिलीजियसली ब्लाइंडली। टेम्पलेट बोलते बोलते 30 सेकंड्स निकल जाते हैं, आप एक्चुअल कंटेंट उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। टेम्पलेट उसके लिए ठीक है जो द पर्सन हु इज वेरी वीक इन इंग्लिश, who is very weak in grammar, he or she cannot make their own sentence, their sentence structure is weak, their English is weak, for them template is good because वो एक content कुछ ना कुछ दे देता है, कुछ ना कुछ provide कर देता है। But if someone is सही। looking for something good and high, they have to provide the actual answer, and the actual answer is the content of the exam itself. For example, ओके। हम्म। I show you a picture. Now, I give you a time to work, टू डिस्क्राइब दैट थिंग। ओके, ओके, and then you speak on it. From there, I can ओके, tell ओके, what exactly is your issue. And ओके, श्योर, श्योर। मुझे अभी से आइडिया है कि आपकी गलती क्या होगी। Anyways, अच्छा, आपको आइडिया है। जी आई हैव एन इट्स आइडिया कि इट्स अ आप, क्योंकि जिस तरह आपने बताया है कि टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहा, उससे मुझे बात समझ आ गई कि इशू क्या है। Just give me, can you, or just give me a second, I share the screen. नो, नो वरीज, नो वरीज, यू कैन टेक योर टाइम मैम, नो वरीज। Okay, can you see the screen? या आई कैन, बट Shall नॉट I? completely, Okay. completely not. Zoom it. No, no, just yeah, yeah, now it's fine. Okay, I give you time to pair it and then start Okay. speaking. Keeping pets, total dogs, cats, fish, fresh water fish, birds, reptiles, horses, saltwater fish, other. Get what open. Okay. Okay. You're Okay, ready? ma'am. Okay, start speaking. Yeah. There is a picture in front of me. I've got 40 seconds to talk about this picture. Let me have a closer look at this picture. After having a closer look, several trends are emerging in this picture. I can see number of US households keeping pets. I can see total number, which is 84.9 million. Dogs, cats, which is simultaneously 63.4 million, 42.7 million respectively. Freshwater fish. I can also see birds, reptiles, horses, saltwater fish, other, which comes with the factor that 11.5%, 11.5 million, 5.7 million, 4.5 million, 1.6 million, 1.6 million once again for saltwater fish, and 5.4 million. Overall, the picture is informative and useful. That's it. आह, आपकी ट्रेन छूट रही है क्या? ओह अच्छा, मतलब कि मैं इसलिए ये जो अभी सारा कंटेंट मैंने बोला है ना, ये टोटल 26 to 27 मिनट्स में मैं डन कर देता हूँ।
नहीं तो जरूरी नहीं है ना, बिकॉज यू yourself said that you will speak of 40 seconds. It's not necessary you do it in 27 seconds. It's better to speak more than 30 seconds. ठीक है, आप उसको कुछ कंटेंट तो दो. The second thing is, in order to speak so fast, you were fumbled. You were fumbling and you fumbled twice or thrice. Because ऐसे हम्म वैसे इंसान है, वो जल्दी जल्दी बोलेगा तो अटकेगा, राइट? क्योंकि आप सांस ही नहीं ले रहे थे ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टू ब्रीथ. सेकेंडली, ग्रामर का ये बड़ा रूल जो होता है, जो मैंने प्रेप में सीखा था, कि आपने फुल स्टॉप और कॉमास पे रुकना है. आपको टेम्पलेट इतना अच्छा रटा हुआ है कि आपको जहां रुकना चाहिए, तो यू डिडंट स्टॉप देयर. फॉर कॉमास यू हैव टू स्टॉप फॉर टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 1 सेकेंड, एंड फॉर फुल स्टॉप इट शुड बी एटलीस्ट 2 सेकेंड्स. तो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे हैं, यू डिडंट टेक अ ब्रेक. जबकि नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में एक ब्रेक होना चाहिए, इज मस्ट. ये रीडिंग को भी हेल्प करती है बात. बट मैम जब मैंने प्रैक्टिस की थी ना तो ये चीज़ उस टाइम पे मैं नोटिफाई मैंने की तो शायद फर्क महसूस, थोड़ा तेज बोला, थोड़ा स्लो बोल के भी देखा, वो थोड़ा मिड रेंज का भी बोला है। मेरा स्पीकिंग में मैक्सिमम स्कोर जो है 89 आया हुआ है। तो उस हिसाब से पीयर्सन के ऑफिशियल टेस्ट में, तो उस हिसाब से जब वो आप इस तरह का स्कोर मिलता है तो बंदे को ऐसे लगता है कि शायद वो पीटी वाले डिफरेंट क्राइटेरिया को एक्सेस कर नहीं, रहे होते हैं वो या नहीं, वो नहीं है. मेरा मेरा पियर्सन में ऑफिशियल मॉक में 77 से ऊपर गया ही नहीं. मैंने 4 दिए. और एप यूनी में मेरा नहीं ऑफि नहीं नहीं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कह रही मेरा हूँ. और मेरा रियल में 87 आया. क्यों? हम्म, वो हाँ मेरे तो वो क्या था, वो हम्म, स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर करें, वो इसमें क्या किया स्ट्रैटेजी. आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी ये जो पिक्चर मेरे सामने। हाँ, मैं उसको इस तरह पढ़ूंगी. Here's an informative picture in front of you. It is about number of US households keeping pets. There is a sorry, मैं दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस नहीं है. Here's an informative नो picture वरीज। in front of me. It is about number of US household keeping pets. I see a maximum effect of 63.4 million for dog, and there is a minimum effect for saltwater fish at 1.6 million. I can also see dogs at 63.4 million, cats at 42.7 million. I can also see freshwater fish at 11.5 million, birds at 5.7 million. I can also see reptiles at 4.5 million, horses at 1.6 million. Saltwater fish are at 1.6 million. In conclusion, it is a very important picture. तो मैं नॉर्मल टोन में बोला है. ठीक है. हाँ, मैंने फंबल किया हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिस नहीं की. और नहीं वो ओके, वो हो जाता है, मेरे से भी हुआ है, पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो उस पर जब मैंने पेपर दिया तो उसमें जो टेस्ट अटेम्प्ट किए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने इसी फ्लो में बोला है, बट इसी तरह बोला है ऊपर नीचे, शायद डॉग्स पहले बोल दिए, कैट्स बाद में बोला है, बट फ्लो था वो, उसमें वो फंबल नहीं हुआ। बट उसमें मुझे ऐसे फील हुआ कि उस चीज़ को वो शायद उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, इवन के वो लैंग्वेज एकेडमी वालों ने अपनी जो टेम्पलेट है वो भी अपडेट कर दी है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इवन के जो उसके टेस्ट लेने वाले हैं, जो खुद देते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, तभी वो टेम्पलेट किसी को आगे सजेस्ट करते हैं ये यूज कर लें। तो उसकी टीम में से भी लोगों ने जाके टेस्ट दिए पुरानी टेम्पलेट यूज करके, और वैसे ही जैसे वो पहले 90 ले चुके हैं उस टेस्ट में, और पीटी के ऑफिशियल टेस्ट में 90 अबव ले चुके हैं, 90। तो उन्होंने टेस्ट दिया तो उनका भी स्कोर नहीं आ रहा था। तो तब उसने ये वीडियो भी बनाई, सारा कुछ किया, अपडेट किया, और सारा अपने जो रिजल्ट थे बिफोर एंड आफ्टर शेयर किए, ओल्ड टेम्पलेट के और जो न्यू टेम्पलेट है। तो दैट्स हाउ इट कम्स। वैसे मे बी फॉर सम पीपल आई नो कि उनके लिए वर्क कर रही है, बट वो उस टेम्पलेट को वैसे यूज नहीं कर रहे जिस तरह आप देखें, मुझे अपनी टेम्पलेट जो रटी हुई है, बट मेरे इंस्टीट्यूट में जिसने मुझे टेम्पलेट दी है उसी में ही उस बंदे ने 8 लिए हैं, बट वो उस तरह वो यूज नहीं कर रहा टेम्पलेट उसको। एग्जैक्टली टेम्पलेट वही हाँ, बात है कि आप ये टेम्पलेट को यूज कैसे करते हैं. जैसे आपने जो बात पढ़ा था ना, वो अच्छा खासा टाइमिंग तो टेम्पलेट को पढ़ने में बोल दिया था. ठीक है. और दूसरा, आपकी जो गलती थी, वो बहुत फास्ट बोल रहे थे. आई डोंट थिंक सो आई वाज दैट फास्ट, एंड आई वाज टेकिंग नेचुरल पोजेस. बट वो ये चीज फास्ट इसलिए कर दी क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ, लाइक एप यूनी आपने खोला हुआ है, तो उसमें एग्जैक्टली भी वो एग्जैक्टली. कहता है जी आपकी जो फ्लुएंसी है वो लो है। आई तो टोटली उसमें एग्री. मुझे फिर अगर ऐप यूनी ये कहता है कि भी जी फास्ट बोलो, अगर आप फास्ट नहीं बोलते हाँ तो आपको मार्क्स नहीं देता. एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको दैट इज द रीजन। मगर देखिए, ये याद रखिए कि ऐप यूनिट जो है ना, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. उसका सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है. इसके लिए सिंपल ह्यूमन रूल, नेचुरल नेचुरल रूल, ये सिंपल आसान आंसर ये है कि जो नेचुरल टोन है उसमें बात करें. क्योंकि आप इतना फास्ट बोल रहे थे कि आपके कुछ लफ्ज मैं कैच कर सकी और कुछ नहीं कर सकी थी. ठीक है. और मैं तो इंसान हूँ, वो सॉफ्टवेयर है. उसको जब तक क्लियर लफ्ज सुनाई नहीं देगा, वो नहीं समझेगा चीजों को.
अब आपने ये कहा है ना, मैंने जब ये टेस्ट देने जा रहा था, मेरा स्पीकिंग में मॉक टेस्ट का, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, 80 मार्क्स आए हैं मेरे उसमें, स्पीकिंग मॉड्यूल में जो टेस्ट दिया ना, मॉक टेस्ट, जस्ट बिफोर दैट नाइट, जो टेस्ट का दिन था वो इतनी 10 बजे, खास उससे नहीं है, वो तो बड़ी चीज नहीं है एटी। मॉक में नहीं मैं नहीं, बोलूँ क्योंकि वो थर्ड पार्टी एटलीस्ट, सॉफ्टवेयर है। और रियल में नहीं नहीं कितने हैं? नहीं नहीं, पीयर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, हाँ, वो थर्ड पार्टी तो नहीं है। वो भी इतना ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर पे भी आपके डिवाइसेस पे भी डिपेंड करता है। लाइक मेरे 77 से अबव नहीं आए थे चारों में, और मेरे वहाँ 87 आ गए। लाइक वो पता नहीं, आपने शायद उसको इम्प्रोवाइज अच्छे तरीके से किया हो, बिकॉज ऑफ बिल्कुल। थॉरो प्रैक्टिसिंग, बिल्कुल। उस वजह से। तो वो भी थोड़ा होता है, कुछ लक, मैं ये फील करता हूँ, कुछ लक फैक्टर भी होता है इसमें। हाँ। कुछ लोग आसान आ मेरा जाता है, कुछ लोग आता। मेरा शायद हार्ड लगता कि उससे एक दिन पहले मेरी जॉब खत्म हुई थी, तो आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि दिस इज द ओनली लास्ट रिजॉर्ट है मेरा, अगर मैंने ये भी अवेल नहीं किया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो मे बी दैट वाज माय, आह, इफ आई डोंट नो, बैड लक, और वो कंपनसेशन थी वो फ्रॉम द अल्लाह और व्हाटसोएवर। मगर आपकी जो हम्म मिस्टेक मैं यही कहूंगी कि यू आर वेरी वेरी फास्ट, और आप नेचुरल पॉजेस नहीं ले रहे। ठीक है, इसकी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं। यू हैव टू स्पीक वेरी नेचुरली। लाइक इफ यू से, अगर मैं आपकी पेज पे चलता हूँ, जिस तरह आपने बोला नंबर ऑफ यूएस, उस तरह तो जो टेम्पलेट मैं यूज कर रहा हूँ वो तो कल तक खत्म होगी, 40 सेकंड तो पूरे हो जाएंगे। यही तो बात है कि आपने टेम्पलेट देखे। आपके पास तीन, मेरा सवाल है, डिस्क्राइब इमेज तीन अलग किस्म के क्यों आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं ये मुझे नहीं पता बिल्कुल वो भी। आपको डिफरेंट तरीके से जज करना चाहते हैं। रीड अलाउड 6 क्यों आते हैं? वो आपको डिफरेंट तरीके से जज करना चाहते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे बोलते हो। रिपीट सेंटेंसेस 12 क्यों आते हैं? क्योंकि आपको वो डिफरेंट तरीके से जज कर रहा होता है, वो डिफरेंट एंगल से, पर्सपेक्टिव से। रीड अलाउड में कहीं ऐसे पैराग्राफ आते हैं जिसमें कॉमास बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिसमें ईडी ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिसमें जो पहला लफ्ज एस खत्म हो रहा होता है, दूसरा एस शुरू हो रहा होता है, वो टंग ट्विस्टर टाइप होता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेम्पलेट का ये है कि टेम्पलेट जहां ऐसी तस्वीर आ गई है जहां पे कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, कंटेंट बड़ा कम दिया हुआ है, वहां टेम्पलेट को यूज करें। अब ये तस्वीर खुद इतनी इतनी डिस्क्रिप्टिव है कि इसको बोलते बोलते आपके 30 सेकंड्स निकल जाएंगे। तो ये मैंने खुद को सिखाया था, क्योंकि मैं देख रही थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी कि जब मैं टेम्पलेट हम्म यूज कर रही हूँ तो टाइम खत्म हो गया और आधा कंटेंट मेरा रह गया। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने देखा, इवन ऐप यूनिक का अगर आप इसका नीचे आंसर देखें तो उसने भी ऐसे ही बोला है जैसे मैंने बात की है, कि उसने, या जैसे आप जैसे उसने कोशिश की है कि तस्वीर के अंदर जो जो कंटेंट है मैं वो बोलूं, क्योंकि वही आंसर उन्होंने सेव किया हुआ है, आपका टेम्पलेट नहीं सेव किया हुआ। टेम्पलेट सिर्फ ऐसे होता है ना कि वो एक स्ट्रक्चर्ड जुमला बोले, आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोले। जैसे मैं एक बंदे को प्रैक्टिस करवाती हूँ, वो ये कहता है आई हैड सीन, आई हैड सी, तो मैंने कहा आई हैड सी क्या होता है? वो ग्रामर को एक तरीके से होता है कि आप वो, जैसे वो मोइन अख्तर का मीम है ना कि मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, तो आप इधर उधर ना निकले, एक स्ट्रक्चर अच्छा अच्छा। तरीके से बात करें। मगर स्ट्रक्चर में भी कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आप, इवन इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, द आंसर, फॉलोइंग पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स। देखिए टेम्पलेट में आपके फुल स्टॉप जरूर होगा, मैं मान ही नहीं सकती फुल स्टॉप नहीं होगा, मगर जिस स्पीड नहीं से हो, आपने बोला है, आपने स्पीड नहीं, फुल स्टॉप वो पढ़ा ही नहीं होगा, है। बट आप कितनी देर का पॉज, ये तो आपकी इंस्ट्रक्टिव थॉट होगी कि आप उस ये चीज को पॉज करें। नहीं अब नहीं, मेरी तो ये फ्लो इतना बना हुआ है इस चीज का, तो मैं सोचता हूँ आपको शायद तोड़नी मैं पड़ेगी। लेट ना हो जाऊं। तोड़ नहीं नहीं, लेट नहीं, क्योंकि आप टेम्पलेट के पीछे पड़े हुए हैं ना। From the bar chart, we can see the value of cat is 42.7 million. तो देखिए उसने जो तस्वीर के अंदर लिखा वो लिखा है, वो कोई टेम्पलेट नहीं लिखा हुआ। The value of dog is higher, which is 63 million. From the chart, we can see the highest value is total, which is 84.9 million. तो इसने जो तस्वीर के अंदर कहानियां है वो पढ़ी है, उसने सिर्फ पहली लाइन टेम्पलेट की पढ़ी है, टेम्पलेट का है। इन कंक्लूजन द बार चार्ट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, और आखिरी लाइन जो है वो एक टेम्पलेट की लग रही है। बाकी वो इसलिए ताकि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलो, बाकी उसने सिर्फ वो बोला है जो पिक्चर में है। ये देखें, द लोएस्ट वैल्यू इज अदर विच इज 5.4 मिलियन। ठीक है, तो तो कहने का आप जो, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आप पहले जब आपने प्रैक्टिस की थी तो उस वो टेम्पलेट फॉलो करके की थी, यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड स्कोर, बट आफ्टर जब आपने खुद उस चीज को इम्प्रोवाइज किया है, तो आपका डिजायर्ड स्कोर आ गया। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से और कन्विंस मी। ना, मेरा ये कहने का मकसद ये था कि मैं आफ्टर एंड बिफोर टेम्पलेट जो है, मेरे एक ही स्कोर आ रहे थे। कहने का मकसद ये था कि मेरे पास वन ऑन वन फीडबैक नहीं थी जैसे मैं आपको दे रही हूँ।
तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिस अच्छा। की, बट कुछ भी किया मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा था। मेरे मॉक देने के बाद भी, पियर्सन ऑफिशियल मॉक देने के बाद भी 77 हम्म था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा मैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हूँ। तो कोचिंग सेंटर की खातून ने मुझे कहा कि हम्म, इतने इतने पैसे ये वो ना। तो मैंने कहा अच्छा मुझे एक मॉक हाँ। दे दे। उसने कहा पहले मैं, असल में हम्म वो कोचिंग सेंटर्स भी देखना चाह रहे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कि बंदा खुद भी हार्ड वर्किंग है, ये सारा हमारे ऊपर फिर मलबा डालेगा, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी ना अगर मार्क्स नहीं आते। तो वो कह रही हाँ, मैं ये पहले भी। आपको वो लूंगी, डेमो लूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा स्पीकिंग करे। मैंने कहा ठीक है। उसने, जब मैंने बोला तो उसने वही मिस्टेक्स बताई जो मैंने आपको बताई, तो उसने वही मेरी करेक्शन कर दी। मेरी सिर्फ कमी थी हाँ स्पीकिंग जी। की, बाकी ठीक था। तो व्हेन शी गेव मी अ वन ऑन वन फीडबैक, दैट हेल्प मी हम्म रियलाइज कि मैं गलत कहाँ हूँ। तो मुझे पता चला टेम्पलेट गलत नहीं है, मैं पढ़ हम्म गलत रही हूँ। और उसने ये बात बताई, अल्लाह उसका भला करे, कि जी जो तस्वीर हम्म। में लिखा हुआ है वो पढ़े, टेम्पलेट को छोड़ दें। अब फर्ज करें आपके पास एक पिक्चर आती है जिसमें येलो और ऑरेंज और डॉट्स बने हुए एक मैप है, आप हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में मेरे करूंगी। सामने मेरे सामने वो पिक्चर आई हुई है पेपर में। अच्छा ठीक है। So this is an informative picture. This picture carries two different colors like orange and yellow. I can हम्म see different type of dots on it. The dots are blue color. Seems like some kind of a painting from some time. And I'm trying to gather some information. तो मेरा ये होगा कि मैं अपनी तरफ से कंटेंट बोलूं और स्ट्रक्चर्ड में बोलूं और फ्लुएंसी से बोलूं। ठीक है। यहाँ हम्म। अगर आप होते, मुझे ये लग रहा है आपने स्पीड में बोला होगा, और स्पीड में बोला होगा, तो वहाँ आपके मार्क्स कटे होंगे। मैंने आप जिस तरह आपने मेरी सुनी है पेस वो उसी तरह थी, नॉर्मल थी ये लाइक। स्पीड है, ये नॉर्मल नहीं है। ये किसी से भी पूछे वो आपको बोलेगा ये आपकी पेस नॉर्मल नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना, पढ़ रहे थे। अगर आप उस तरह सोचते हैं लाइक कैट्स, फ्रेश वाटर फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, 4.5 मिलियन, टू बी ऑनेस्ट वो रीड अलाउड की वजह से पेज इस तरह बनी हुई है कि क्योंकि एप यूनिक कहता है जी आप जितना फ्लो में बोलेंगे, अब आप प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो करेंगे बिफोर हाँ तो मेरा गेटिंग इनटू यही, योर एग्जाम। हाँ तो मेरा यही उस था। वजह से मैं ऐप यूनी पे हम्म ही थी, और ऐप यूनी की वजह से ही मैं बहुत परेशान हो रही थी जब मेरे स्कोर नहीं आ रहे थे। जब मैंने फास्ट बोला तो स्कोर आ रहे थे। फिर मैंने खातून हम्म उसके लिए मैंने कहा अच्छा हम रेडी। तो मैंने पियर्सन का ऑफिशियल मॉक लिया। ऑफिशियल मॉक पे मेरे आई नहीं, तो फायदा नहीं हुआ ना ऐप यूनी की। जो भी स्कोर आ रहे थे, चाहे 87 ही क्यों ना, चाहे 90 क्यों ना आ रहे, पियर्सन पे वो आई नहीं। फिर मैं परेशान क्या हुआ, तो देन आई वांटेड टू टेक अ ट्यूशन। तो उस खातून ने कहा नहीं पहले मैं आपका डेमो लूंगी। उसने मुझे हम्म। बताया कि असल आपकी मिस्टेक कहाँ पे, और मिस्टेक क्या थी, मैं कंटेंट नहीं पढ़ रही थी। आई वाज कंसंट्रेटिंग 100% ऑन द टेम्पलेट। तो उसके बाद आपने दोनों में डिटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज दोनों में अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन की है और टेम्पलेट यूज नहीं किया है। टेम्पलेट किया है, मगर टेम्पलेट को प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया है। तो जैसे आपको जो टेम्पलेट किसकी है वो, कि आपने जो ली है टेम्पलेट वो अपनी बनाई है या लैंग्वेज एकेडमी की है या नहीं एप नहीं नहीं, यूनी की है? मैंने किसी कोचिंग सेंटर की नहीं ली। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे दी थी। पर जब उस पे भी मैंने अपनी प्रोविजन की, क्योंकि जो टेम्पलेट था मैं उसमें जैसे कोई वर्ड बोल रही हूँ, देयर इज अ, तो देयर जब मैं बोल रही हूँ तो वो पिक नहीं कर रहा था। शायद मेरा देयर क्लियर नहीं है, तो वो मुझे ऐप यूनी दे नहीं रहा था। फिर मैंने टेम्पलेट को इस तरह मॉडिफाई किया कि जब मैं वर्ड बोल रही हूँ वो, फिर मैंने हियर किया। जब मैंने हियर किया तो वो वर्ड पिक हो रहा था, वो ग्रीन हो रहा था, देयर मेरा रेड हो रहा था। समझ रहे हैं अपने हिसाब से, हाँ। क्योंकि वो रेड रेड करता है ना। तो मैंने कहा टेम्पलेट में तो ये मुझे रेड रेड दे रहा है, मुझे क्या फायदा वो वर्ड यूज करने का जो मुझे रेड दे रहा है, जैसे थैंक यू। तो वो हम्म थैंक यू मेरा रेड कर रहा था। जब मैंने रेड थैंक यू को ड्रॉप किया तो वो मेरा सारा ग्रीन हुआ। तो ऐसे टेम्पलेट को आंखें बंद करके बोलने का फायदा जो आपको गलत कह रहा है, आपके प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम को ठीक ही नहीं कर रहा। तो मैंने फ्रॉम फिर सब हियर फिर उसको फ्रॉम मॉडिफाई किए हैं टेम्पलेट्स को। हाँ हाँ। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन मुझे जो फील हो रहा है कि एक स्टार्टिंग का जुमला जो आप फर्स्ट सेंटेंस है वो आप टेम्पलेट से उठाएं, और कंक्लूजन का बाकी जितना भी एग्जैक्टली, डाटा है वो आप उसी तरह बोलें। पिक्चर से बोले। चाहे 63.4 मिलियन डॉग्स बोलें या डॉग 63.4% मिलियन है जो भी है, वो आप जिस तरह मर्जी बोलें, बट सिर्फ टेम्पलेट का पहला और आखिरी जुमला और बाकी सारा कंटेंट जो सामने लिखा हुआ है जिस तरह मर्जी एग्जैक्टली, बोलें। वो ही चाहे बोलते फ्रेश बोलते, वाटर फिश हाँ समझ गया मैं, फ्रेश बोलते वाटर बोलते, पहले बोल दें। समझ गया बोलते लाइक बोलते दिस ही इज आपके व्हाट यू। 30 सेकंड्स निकल जाएंगे। ये भी बोल रहे हैं ना, इनफ है पूरा बोले, वो आपने फास्ट बोला इसीलिए। ठीक है। तो क्योंकि यही आंसर फीड हुआ हुआ है सिस्टम, आपका टेम्पलेट फीड हुआ हुआ नहीं है। ठीक है। द पॉइंट ये है कि एंड
अब उस सिचुएशन में जो रीटेल लेक्चर है, ये तो चले मुझे क्लियर हो गया, लाइक ये चीज सही है। एंड व्हाट अबाउट रीटेल लेक्चर, फिर उसमें तो आपने मैंने कंप्लीटली उस चीज को नोट डाउन किया था कि क्या क्या उसने बोला है। अच्छा, आप बता, आपने क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया था? लाइक मैंने पहला जुमला यूज किया हम्म। ओवरऑल, और लास्ट जुमले में मैंने बोला ओवरऑल द लेक्चर वाज इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल। पहले हम्म। जुमले द लेक्चर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड अबाउट, उसके बाद जुमला जो यूज हुआ है जो था लेक्चर में, उसके बाद जितने भी मैंने कीवर्ड नोट किए थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस उसी को रिपीट यही किया। यही और आप पे गलती है। देखिए, कीवर्ड्स नहीं करने थे, फ्रेजेस करने थे। ठीक है, असल में हुआ है, जब ये शुरू शुरू में बात एग्जाम शुरू हुआ था, मेरी काफी लंबी डिस्कशन हुई है मेरे फ्रेंड के साथ इस पे। तो उसका ये कहना था कि पहले बहुत आसान होता था, लोग दो एक लेवल में स्ट्रेटेजी काम करती थी, कीवर्ड्स काम कर जाते थे, टेम्पलेट। अब ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, वो खुद नकुल वाले भी ये कह रहे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। तो अब वो ये रेकमेंड करते हैं कि आप कीवर्ड्स ना बोले, फ्रेजेस बोले। ठीक है, तो आप तो मैंने फ्रेजेस फ्रेजेस अगर नोट डाउन करने में करें तो उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम 2 या 3 नोट डाउन कर सकेंगे आप नफ है, उस टाइम बहुत है। फ्रेम। ठीक है, 15 कीवर्ड्स और 3 फ्रेजेस, दोनों में से कंटेंट ज्यादा किसमें होगा? फ्रेजेस में होगा, बट देर आर तो कंटेंट नहीं काउंट होगा ना, देर आर नहीं तो काइंड उसको ऑफ अगर कोई। टेम्पलेट को यूज करें, थोड़ा अपने तरीके से स्ट्रक्चर करें। मैंने भी टेम्पलेट रिटेल में लेक्चर में यूज किया, मगर थोड़ी अपनी भी तो सेंस होती है ना कि आप ग्रामर को कैसे बोलेंगे। वो तो अपनी होती है ना एक आपकी। यू शुड नो, जैसे एज यू सेड इम्प्रोवाइज, यू शुड नो हाउ टू इम्प्रोवाइज अ सेंटेंस। ये वो है, बट उसमें मुझे, मैंने बड़े ट्राई किए, उसमें मेरी फ्लुएंसी वो हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपने भी देखा है ना, इसी वजह से ये उसका ड्रॉबैक है कि इसको ओवरकम करने के लिए मैंने बहुत बहुत तेज से बोला, जिसकी वजह से मेरी ये गलत है, पेस बन चुकी है इस तरह। गलत है, गलत है। और देखिए, फास्ट बोलना ही नहीं ना, ये भी एक रूल हम्म। है, क्योंकि वो आपको नेटिव स्पीकर की तरह जज करना चाह रहा होता है। तो वो नेटिव स्पीकर कभी फास्ट नहीं बोलता। देखिए, सॉफ्टवेयर एक वजह से बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कीवर्ड इसलिए काम नहीं करता। देखिए, सिंपल रूल है, अगर वो जो सेंटेंस बोलता है, अगर वही लिख के आप बोलते हो तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्ड होता है। हम जब कीवर्ड्स बोलते हैं ना, तो ग्रामर में इशू होती है। तो मैंने ये किया था, मैंने हम्म। नकल वाला रूल फॉलो किया था कि 5 सेकंड सुने और उसको लिखें, फिर 5 सेकंड सुने फिर उसको लिखें। अब इत्तेफाक से मेरी 3 लाइनें बनी थी, आप वाली बात। और वो जाहिर सी बात है, 3 लाइनें कम है, तो मैंने ये फिर अक्लमंदी की, उन 3 लाइनों को दोबारा पढ़ लिया था। अच्छा, रिपीट कर लिया था। एग्जैक्टली exactly. तो आप वो क्योंकि टाइम, नहीं, तो ये जो आपने लास्ट टेस्ट जिसमें आपके 87 है, इसमें जो आपने यूज किया है, जो वो उस तरह इम्प्रोवाइजेशन की है नकुल वाली जो आप बोल रही हैं, या नहीं फिर नहीं, पहले की बात? उसमें रिटेल लेक्चर में मैंने तरीका स्ट्रैटेजी नकुल की यूज की, टेम्पलेट मेरा अपना था। अच्छा, वो स्ट्रेटेजी क्या, मतलब कि आपने 3 फ्रेजेस नोट डाउन किए हैं और उसको 2 से 3 दफा रिपीट किया आफ्टर, क्योंकि एक टाइम की शॉर्टेज या टाइम को कंप्लीट करने के लिए। टाइम को कंप्लीट करने के लिए मैंने नकुल की जो स्ट्रैटेजी की थी, उसमें भी एक उसमें नकुल की जो स्ट्रैटेजी की थी कि मैंने जब फ्रेजेस लिखे तो मैंने थोड़े लंबे फ्रेजेस लिख दिए थे, तो वो 3 बने थे। अगर मैं छोटे छोटे लिखती तो 5 हो जाते। अब मैंने देखा कि मैं थोड़ा ये हो गई थी कि मे बी मैंने कम बोला है, तो मैंने उन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया था। हम्म। क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट जुमले थे ना, वो गोरे के बोले हुए जुमले थे, वो करेक्ट थे। जब आप कीवर्ड फिट करने की कोशिश करते हो टेम्पलेट में, तो वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं रहता। हम्म। नहीं, मैंने तो इस तरह है कि आई कैन सी दिस वे, आई कैन सी दिस वे, दिस दिस एंड दिस, आई कैन सी दिस दिस एंड दिस, आई कैन आई सी कैन दिस दिस सी दिस, किस में, डिस्क्राइब इमेज में या रिटेल लेक्चर में? दिस रिटेल लेक्चर में। नहीं, नेचर में आई कैन सी तो नहीं है ना, आप सुन रहे हो ना। मैं अपने टेम्पलेट पढ़ के बताती हूँ, मेरा टेम्पलेट क्या था, मैं आपको पढ़ के रीड करके बताती हूँ, तो आपको समझ आएगी। अच्छा, इसमें मुझे मैंने कहा था ना, मुझे सीनियर ने दिया था टेम्पलेट, तो उसने कहा था कि अगर आप ये बोल, अगर बताती हो ही है या शी है, मतलब अगर आप फिगर इट आउट कर लेती हो कि स्पीकर ही है या शी है, तो वो बड़ा हम्म। हेल्दी, मतलब अच्छा आपके लिए इफेक्ट देगा, क्योंकि मे बी वहां पे भी लिखा होता है ही एंड शी। एक मिनट, सो थोड़ा टेम्पलेट भी जो है ना, वो भी तो मुनासिब तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ना। गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द टेम्पलेट। नहीं, अभी तक तो नहीं। आपको नहीं दिख रहा? सी, नजर तो आ रहा है। एक मिनट, दोबारा कर नहीं, लेते हैं शायद। अब अभी शायद आपने कुछ किया तो शायद है।
now it's तो visible. सेंटेंस टेम्पलेट भी तो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए ना, जैसे मेरा ये था, द टॉक डेलिनिएट्स अ डिटेल्ड पिक्चर रिगार्डिंग, तो टॉपिक को मैंने बताया कि बस किस किस के बारे में, द स्पीकर ऑल्सो मेंशन्ड, तो मैंने एक लाइन बोल दी, ही ऑल्सो सेड या शी ऑल्सो सेड। फिर अब आई सी कैसे भाई, रिटेल में तो आप सुन रहे हो, देख कैसे रहे हो? तो आप जो कंटेंट में, वही बात कि जो उसको आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसने जो अपने पास आंसर सेव किया होगा, उसमें उसने आई सी नहीं लिखा होगा, उसने ये कहा होगा कि स्पीकर ये कह रहा है, स्पीकर ये कह रहा है, टॉक किस चीज के बारे में बात हो रही है, लेक्चर इस चीज के बारे में बात कर रहा है। फिर तीसरी लाइन है, Mm. डैश वाज आल्सो एलिबरेटेड इन डिटेल, यानी कि मैंने कोई लाइन बता दी कि वो भी एलिबरेट। फिर ये वाले मैंने छोड़ दिया था, कंटेंट बिसाइड ऑल दीज, क्योंकि ये उसने मुझे फ्रेंड ने कहा था कि अगर आप ज्यादा कंटेंट मटेरियल नहीं नोट कर सकी और आप कुछ ना कुछ उसको देना चाह रही हैं, तो फिर ये वाले पैराग्राफ बोलिएगा, वरना स्किप कीजिएगा। फिर मैंने लिखा हुआ है, ही नॉट ओनली डिस्कस्ड, वो डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, आप सी कहाँ से कर रहे हो। फिर इन एडिशन टू Mm. टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग राइट, टॉकिंग अबाउट दिस द लेक्चर कंक्लूडेड बाय स्पीकिंग, बाय फोकसिंग ऑन दिस, ठीक है। तो ये आप खुद Mm. देखें, Mm. टेम्पलेट कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। मीन्स ये आपने यूज किया जो आपने 87 लिया, राइट? जी, मैंने ये इसमें भी यूज किया, और समराइज स्पोकन टेक्स्ट नहीं, में भी। आप नहीं, इसमें आपने इम्प्रोवाइजेशन की है या एज इट इज है ये? नहीं नहीं, मैंने इम्प्रोवाइजेशन की है, जैसे मैंने ये वाला जो पैराग्राफ है ना, बिसाइड्स ऑल दीज आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रपोजिशंस, ये मैंने वहां ड्रॉप कर दिए हम्म। थे। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है शायद, वो उसमें शायद वो लेता ना वही वर्ड्स उस तरह प्रोनाउंसिएशन का इशू होता। ठीक है, फिर ही नॉट ओनली डिस्कस्ड, ठीक है। इसमें भी जब मैं बोलती थी तो मैं देखती थी कि रेड मेरा कहाँ आ रहा है, अगर मेरा कहीं रेड आ रहा है तो मैं ड्रॉप। अच्छा, यही टेम्पलेट मैंने समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी यूज किया है, यही टेम्पलेट, इसलिए द मैंने दोनों के लिए अलग द अलग सेम। टेम्पलेट्स याद नहीं किए थे। नहीं, मेरे समराइज स्पोकन तो मुझे पता है वो बिल्कुल सही है, लाइक उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। वो अगर होता तो मेरी स्पीकिंग में, उस लिसनिंग में इतने होते ना, मार्क्स सिर्फ 76 ना होते, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक टेम्पलेट यूज की थी, मेरा लिसनिंग में जो स्कोर था वो बिलो 70 आया था। उसके बाद अभी जो मैंने यूज किया उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ दैट रिगार्ड। उसमें तो काफी अच्छे खासे वर्डिंग नोट की थी, बहुत ज्यादा, लाइक रफली अगर मैं काउंट करूं, 3 3 3 3, लाइक 20 to 24 नॉर्मल वर्डिंग जो मैं लेता हूँ वहां से। वो मगर आई डोंट नो अबाउट यू, पर मेरे सीनियर ने भी ये कहा था कि आप फ्रेजेस की तरफ जाइएगा, और नकुल भी ये कह रहा था कि फ्रेजेस की तरफ जाइएगा, वरुण भी जो लैंग्वेज एकेडमी का है वो भी यही कह रहा था कि आप फ्रेजेस की तरफ जाएं, आप कोशिश करें कि कीवर्ड्स को अवॉइड करें। तो शुरू शुरू में होता था कीवर्ड्स भी काम कर जाते थे हर टेम्पलेट पर, आस्ते आस्ते वो थोड़ा टफ होता जा रहा है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, तो वो नहीं, आपको। अभी उसने वरुण की आपने बात की है तो वो जो है उसकी अभी रिसेंटली, एग्जैक्टली मैं कहूँ 7 डेज पहले, लाइक लास्ट वीक की बात करूँ, उसने अपनी टेम्पलेट्स डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर की अपडेट की है। और हम्म उसने उसमें कीवर्ड ही नोट किए हैं, बट उन कीवर्ड को अब मुझे नहीं समझ आ रहा, वो डिस्क्राइब उसमें रिटेल लेक्चर में तो कंप्लीटली फिट होते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। बट उसने जिस तरह पहली लाइन में 1 and 1 2 लिए ना, कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, फिर दूसरी लाइन में कीवर्ड 1 और कीवर्ड 2, जबकि एक डिस्क्राइब इमेज कंप्लीटली एक ग्राफ होता है, और ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली। कम कम से कम 8 से 9 वर्ड्स होते हैं, और वाई एक्सिस पे कम से कम 6 से 9 इस तरह होते हैं रेंज, और फिर ऊपर से उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू भी होती है। अब हम्म उस पॉइंट पे उसने जो मेंशन किया हुआ है, मुझे तो अगर उसकी 5 लाइनों को नोट करूँ तो 10 बनते हैं मैक्सिमम वर्ड्स, 5 लाइनों में, हर लाइन में दो दो उसने कीवर्ड फिट इन किए हैं। तो मुझे नहीं पता उसने किस तरह उस चीज को, इवन कि वो अपना लिसनिंग जैसे वो मॉक टेस्ट देता है, उसका हाउ ही अटेम्प्ट द पीटी हम्म ऑफिशियल टेस्ट, और उसमें वो लगाया हुआ उसने रिपीट सेंटेंस का, तो आधा वो जुमला बोलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा इस जुमले पे इसका 90 कैसे आ सकता है यार, ये शायद ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है, या फिर या जो उसका ऑफिशियल, क्योंकि आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि ये जो पीरसन में ऑफिशियल लोग बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं, या आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। या मुझे तो पता है, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हूँ, मुझे पता है ये यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पे इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं वो उस सारी चीज को। आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं क्योंकि मुझे पता नहीं है तो काफी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वी कैन नॉट से एनीथिंग सो ओपनली। यू नो उन उसमें मैं भी मैं देखिए, इसमें देखिए मैं वो जो आपको गाइड बता रहा वाले हूँ होते हैं ना, जस्ट लेट मी फिनिश, वो गाइड अच्छा वाले अच्छा। होते हैं वो असल में डिफरेंट वर्जन ऑफ मार्किंग के लिए हो रहते हैं, वो 79 के लिए
कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है, 65 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है, जो 50 में लेना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट, तो वो एक्चुअली डिफरेंट वर्जन्स को वो कैटर कर रहे होते हैं। मैं तो आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 79 सही लगा आपने है ना, अब जैसे वो मैंने लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल और उससे ध्यान ना दें, मैं कहती हूँ जरूर दे, अगर आपने 79 के लिए जाना, आप एक एक नंबर के लिए फाइट करें। हाँ वो तो मैं उस चीज का तो है हूँ ही नहीं कि यार छोड़ दो इसको, ये चीज है ही नहीं। अब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह बंदे ने मुझे टेम्पलेट दी इंस्टीट्यूशन ने, उस इंस्टीट्यूशन ने मुझे प्रिडिक्शन फाइल भी दी। मैंने प्रिडिक्शन फाइल से मैं आपको रफली बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन रीड अलाउड